Hello students, in this class we will see few MCQ from the entire syllabus of first semester. Okay, so this is Sovik Das and I have come here to discuss few questions with all of you from the syllabus of first semester of ICSC physics. Okay, so this is our first question. Okay, and this is your timer. I am starting the timer. Yes, it is started. Okay, now tell, when a piece of stone tied at the end of a thread, tied at the end of a thread is whirled in a horizontal circle with uniform speed, then which of the following is correct? Option A, both velocity acceleration variable, both velocity acceleration constant, velocity is constant, acceleration variable, या D velocity is variable, acceleration is uniform. सो तुम्हारा टाइम बचा है 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और हो गया टाइम्स खत्म. सो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को, और करेक्ट ऑप्शन इज दिस. ओके, सो यूनिफॉर्म स्पीड horizontal circle with uniform speed, that means it is a UCM, uniform circular motion, right? Uniform circular motion. Okay, and uniform circular motion velocity is variable because here the magnitude of velocity does not change. Okay, but क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है. डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. और सेकेंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ठीक है, यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, बट डायरेक्शन चेंज होगा. ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा. अगर ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, डायरेक्शन यहाँ पे इधर टुवर्ड सेंटर, इट एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, यहाँ पे टुवर्ड साउथ, ओके, यहाँ पे टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्थ. सो डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन का. सो इसीलिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर वेरिएबल. सेकंड क्वेश्चन, यस, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन एंड इज योर टाइमर स्टार्टेड. यस, टेल, a uniform meter scale of weight WGF gram force rests horizontally on a knife edge at 57 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from the 100 centimeter mark. The clockwise moment is, you all can see the diagram. Yes, tell the correct option. This one you have to calculate. You have to find the clockwise moment only. Which force will make the clockwise moment? You have to take that one only. And your times off हो गया, टाइम्स खत्म हो गया. तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को. हमारा करेक्ट ऑप्शन है 860 ग्राम फोर्स, 860 ग्राम फोर्स. ओके, सो एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं. वेट WGF, so weight acts for a uniform meter scale. Weight will act at its midpoint, suppose here. Okay, weight is acting here. Okay, this is weight. Okay, W, and this mark 50 centimeter. Okay, now which force, two forces are here, one is weight, another is 20 GF. Which one will make the clockwise moment? Which one will make the clockwise moment? This one, weight, will rotate in this direction about the pivot. Okay, this one will make anti-clockwise. This 20 GF will rotate in this way, that means this is clockwise. So clockwise moment equal to what? Clockwise force. Which one is clockwise force? 20 GF into the distance from pivot, this distance from pivot means this distance. How to find? 100 minus 57 centimeter. Here all the units are in CGS, so no need to convert anyone. So 20 into 100 minus 57 is 43. So 20 into 43 is 860 GF centimeter. So correct option is C. Okay, next question. Yes, this is our next question and this is your timer started. Very easy question from machine. A block and tackle has 5 pulleys. If its efficiency is 60%, then mechanical advantage will be. Okay, तुम्हारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 1.6. ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो. ठीक है, उस फॉर्मूला को यूज करना होगा. और ये तुम्हारा टाइम्स हो गया खत्म. ओके, सो हियर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 5 पुलीज. ओके, and velocity ratio for block and tackle system equal to number of pulleys, so velocity ratio will be 5. Okay, now efficiency is 60%, we have to find MA.
Now efficiency eta equal to we know ma by vr. This is very important relation you have to keep in mind. Eta equal to ma by vr. Now eta is 60%, that means 60 by 100. Okay, ma we have to find, vr is 5. So ma will be 60 into 5 by 100. Okay, so it is 300 by 100, 300 by 100, that means 3. Okay, oh, I have not shown the correct option. 3 is the correct option. So ma means 3 is the correct option. Okay, mechanical advantage is 3. In this way you have to solve this one. Going to next question. हमारा next question है question number 4 और ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया. ये क्वेश्चन है वर्क पर एनर्जी चैप्टर से. Speed of a particle increases by 20%. By how much percent its kinetic energy increases? Okay, speed increases by 20%. How much percent its kinetic energy increases? 120%, 144, 110 या 140. एंड योर टाइम्स हो रहा है ख़त्म. 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और हो गया टाइम्स अप. सो पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को. हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 144%. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व. नाउ स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 20%. इनिशियल स्पीड vi इक्वल टू v. सपोज vf will be how much? Increases by 20%. So v plus 20% of v. ओके, इनिशियल वेलोसिटी का 20% इंक्रीज हो रहा है. सो इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? 120 बाई 100 v. ठीक है, ठीक है. अच्छा, इसको तुम छोटा भी कर सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा कर लो. सो छोटा करोगे तो कितना आएगा? 0 0 कैंसिल्ड आउट. ठीक है, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 6 और यहाँ पे 5. सो 6 बाई 5 v. ठीक है, ठीक है, मास चेंज नहीं हो रहा है. ओके, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ m v i स्क्वायर. v i मीन्स v, सो v स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है? हाफ m v f स्क्वायर. v f मीन्स दिस 6 बाई 5 v. सो 6 बाई 5 v स्क्वायर. ओके, v स्क्वायर को अलग से लिखो. सो हाफ m v स्क्वायर हो गया और 6 बाई 5 का स्क्वायर मीन्स 36 बाई 25. ठीक है, ठीक है. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है के एफ, एक के आई का कितना परसेंटेज है? ठीक है, के आई का कितना परसेंटेज है? सो के एफ बाई के आई इंटू 100. सो फाइनली वी हैव टू डू के एफ बाई के आई इंटू 100. ओके, के एफ बाई के आई इंटू 100. सो के एफ बाई के आई करोगे तो 36 बाई 25 यही बचेगा इंटू 100. सो 25 और 100 4 हो जाएगा यहाँ पे. 36 इंटू 4 इज 144%. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस. करेक्ट ऑप्शन इज दिस. ओके, क्लियर. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. This is from prism. Timer started. Yes, the factor on which angle of deviation produced by a prism does not depend on. Yes, deviation by prism. Okay, from that part. So factors on which angle of deviation produced by prism does not depend on: A, angle of prism; B, material of prism; C, size of prism; या D, wavelength of light. Okay, ये theoretical question है. Okay, nothing to calculate. और तुम्हारा टाइम बचा है 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 और टाइम्स अप. सो स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे. सो क्वेश्चन 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं. एक ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है तुम्हारे बुक में. इस तरह का एक ग्राफ है, राइट. इस तरह का एक ग्राफ है. यहाँ पे मिनिमम डेविएशन, राइट, डेल्टा मिनिमम. सो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. सेकेंड, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, डेल्टा का एक छोटा फॉर्मूला था जो मैंने तुम लोगों को याद करने को बोला था. डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. ठीक है, ये फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है फॉर थिन प्रिज्म. ठीक है, इसको याद रखोगे तो 3 पॉइंट आ जाएगा. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा और वेवलेंथ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे, वहाँ पे वेवलेंथ भी आ जाएगा. सो वेवलेंथ ऑफ लाइट भी आ जाएगा लैम्डा.
सो ये तीनों फैक्टर के ऊपर डेल्टा डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बी के ऊपर डिपेंड करता है, डी के ऊपर डिपेंड करता है। साइज ऑफ प्रिज्म, इसके बारे में कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं, तो साइज ऑफ प्रिज्म हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बोला कि फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, एंगल ऑफ डिवीजन डज नॉट डिपेंड ऑन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 ये, और ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया है या okay, this is light enters from air into diamond which has a refractive index of 2.4. calculate the speed of light in diamond, speed of light in air दिया हुआ है। तो ये है application of that formula mu equal to c by v, yes mu equal to c by v, everyone do this, okay। refractive index दिया हुआ है, speed of light in air दिया हुआ है, okay, so mu equal to c by v इसका application है। so बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचा है और हो गया खत्म। देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है ये प्रॉब्लम। म्यू दिया हुआ है 2.4, सी दिया हुआ है 3 × 10⁸ बाय वी। सो वी कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ बाय 2.4। सो 3/2.4, 3/2.4 कितना होगा, कैलकुलेटर से देख लेते हैं, और तुम लोग डिवाइड भी कर सकते हो। 3/2.4 हो जाएगा 1.25, ठीक है। 3/2.4 हो जाएगा 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन और क्वेश्चन 6 का। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यस। और ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ द डाइवर्जिंग लेंस विल प्रोड्यूस, ये लेंस का प्रॉब्लम है, थियोरेटिकल क्वेश्चन। डाइवर्जिंग लेंस विल प्रोड्यूस, ऑप्शन ए ऑलवेज रियल मैग्नीफाइड, बी ऑलवेज वर्चुअल मैग्नीफाइड, सी ऑलवेज रियल डिमिनिश्ड, या ऑप्शन डी ऑलवेज वर्चुअल डिमिनिश्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट डाइवर्जिंग लेंस का कंसेप्ट होना चाहिए। और तुम्हारा टाइम बचा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, हो गया टाइम साफ। तो पहले देख लेते करेक्ट ऑप्शन को, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी, क्यों, ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, किस तरह का लेंस है, कनकेव लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कनकेव लेंस, एंड कनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल डिमिनिश्ड, ओके, वर्चुअल डिमिनिश्ड, एंड वर्चुअल का मतलब इरेक्ट भी है। सो वर्चुअल आ जाएगा तो इरेक्ट भी आ जाएगा। सो वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज, कनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज, एंड कनकेव लेंस, अनदर नेम ऑफ कनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सो ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ, ये भी एक छोटा न्यूमेरिकल है पावर ऑफ लेंस का। तो पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है, टाइप एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस आर। टाइप कहाँ से पता चलेगा, ये प्लस माइनस साइन से, और फोकल लेंथ को ये वैल्यू से पता चलेगा। सो ऑप्शन ए कनकेव फोकल लेंथ 2, ऑप्शन बी कन्वेक्स फोकल लेंथ 2, ऑप्शन सी कनकेव फोकल लेंथ 0.5, या ऑप्शन डी कन्वेक्स फोकल लेंथ 0.5। सो टेल 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और हो गया तुम्हारा टाइम खत्म। तो पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सो कैसे होगा, प्लस, ओके, पावर दिया हुआ है प्लस 0.5 डायोप्टर। ये प्लस साइन से क्या पता चलता है, प्लस साइन से पता चलता है कि इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। नाउ किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ मतलब कौन सा फोकस, सेकंड फोकस को कंसीडर करते हैं। किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होते हैं, किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होते हैं, कन्वेक्स का। कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस ये है, इसका सेकेंड फोकस किधर रहता है, ऑन द राइट साइड, राइट, F2, राइट साइड मीन्स पॉजिटिव। सो पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स होगा, ओके। सो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, ये दोनों के बीच एक होगा। अब आ जाओ फोकल लेंथ, F इक्वल टू क्या होगा, 1/P, P इक्वल टू 1/F, सो F इक्वल टू 1/P, ओके। सो 1/0.5 डायोप्टर, 1/0.5 diopter means 2 meter, okay, 1 by diopter means meter. So focal length हो गया 2 meter, और nature of lens और type of lens is convex. For that reason correct option is option B.
Next question, question number 9. Yes, this is your question number 9. This is your timer started. This question is from sound wave. Okay, sound wave chapter. Yes, wave has frequency 50 hertz, wavelength 10 meters, speed of the wave. Okay, just there were four equations, basic equations of wave. Using those equations you can solve this question. तुम्हारा टाइम बचा है 7 सेकेंड और ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 0.5 और हो गया तुम्हारा टाइम्स अप. आई होप तुमने करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया. देख लेते हैं. यस, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए होगा. ऑप्शन ए को लॉक किया जाए. यस, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए यहाँ पे बोल रहे हैं. देख लेते हैं. सो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज, वेवलेंथ दिया हुआ है 10 मीटर. सो वेलोसिटी और स्पीड का एक फॉर्मूला है v इक्वल टू एफ लैम्डा. एफ कितना है 50 हर्ट्ज, वेवलेंथ कितना है 10, ऑल आर इन एसआई यूनिट. ओके, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड. सो 50 इंटू 10 500 मीटर पर सेकेंड. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 500 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन ए 500 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. ये क्वेश्चन नंबर 10 ये एक तुम्हारा टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं पहले. और ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. अ प्रॉपर्टी नॉट कॉमन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चैप्टर से. अ प्रॉपर्टी नॉट कॉमन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ऑप्शन ए ट्रैवल विथ सेम स्पीड इन वैक्यूम. ऑप्शन बी एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर. या ऑप्शन डी नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तुम्हारा टाइम बचा है 5 4 3 2 1. हो गया, खत्म. तो पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर. इट इज द नॉट कॉमन प्रॉपर्टी बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. ओके, ट्रांसवर्स इन नेचर, नॉट longitudinal. Travel with same speed in vacuum. Yes, in vacuum they travel with 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, all the electromagnetic waves from X-ray to radio wave, everyone moves with this speed in vacuum. Exhibit the properties of reflection. Yes, always true. Okay, they always shows the properties of reflection. And as these electromagnetic waves are not formed by any charged particle. Okay, they are not formed by any charged particle. They are formed by oscillating electric and magnetic fields. For that reason they are not deflected by electric and magnetic field because they are not formed by charged particle. Okay, not formed by charged particle. Okay, for that reason they do not deflect by electric and magnetic field. Okay, so ये हो गया तुम्हारा 10 क्वेश्चन का. पूरा सिलेबस से हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लेकर डिस्कस किया. ओके, इस वीडियो में. सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड. दिस इज सोभिक दास साइनिंग ऑफ. कीप वॉचिंग. थैंक यू एवरीवन.